Let's say that you have a 1 crore investment corpus and you want 50,000 monthly withdrawal. Will it last 20 years for you, or will it run out in next 10 years? Most retirees get this wrong, and let me show you how to not run out of that money in this video. And here's the situation. Like, let's say you've retired, you have a provident fund, and you have a gratuity that is coming in. So let's say you have a corpus of 1 to 2 crores and that's just sitting in FDs. Bank is giving you 6 to 7% interest, but inflation is eating because inflation is around 6 to 7%. So you're barely staying even on your investment. And then someone tells you try SWP in mutual funds, and you Google it, you see the numbers, and you get confused. Questions flood in your mind. How much can I withdraw safely? Which fund should I use? What about taxes? And will my money last? Today, I'm going to answer all of this in this video. So hi, I am Uday and I'm a SEBI registered mutual fund advisor, and I have helped many retirees retire happily without any tension. So now in this video, I will show you in the next few minutes that how exactly you can do this, how you should plan your SWPs. I will show you through real examples, real calculators, real scenarios. So let's go and have a look at it. ये जो SWP होता है, this is very reliable post retirement income. लोग पूछते हैं कि रिटायरमेंट के बाद इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं. So this is a very reliable post retirement plan, and it is mostly designed for retirees and near retirees जो एजेड 50 to 65 के बीच में होते हैं. उनके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है टू जनरेट रेगुलर इनकम फॉर देयर डे टू डे लाइफ. Now let's understand what's a SWP. So SWP basically, सबसे पहले अगर हम अंडरस्टैंड करें, SWP is a systematic withdrawal plan, and आप उसको एक SIP के रिवर्स में देख सकते हो. जैसे आप SIP में पैसा डालते हो एवरी मंथ और वो पैसा ग्रो होता है, वैसे ही एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है जिसमें आप हर मंथ पैसा निकालते हो फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट. सो इट इज़ लाइक अ रिवर्स SIP. SIP में यू पुट मनी एवरी मंथ एंड SWP में यू टेक आउट मनी एवरी मंथ. नाउ if your fund grows, like let's say you have a 1 crore amount invested and you take out 50,000 every month through the systematic withdrawal plan, this means that the fund house करेगा कैसे? ये आपकी 1 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से कोई भी फंड है, आदित्य बिरला का कोई भी फंड है जिसमें आपका पैसा लगा है 1 करोड़. अब वो 1 करोड़ को हम क्या करेंगे, 50,000 एवरी मंथ निकालेंगे. सो 50,000 कैसे निकलेगा? आपकी जो भी यूनिट्स होंगे, आपके पास जो यूनिट्स होती हैं म्यूचुअल फंड में, जैसे स्टॉक्स में क्वांटिटी होती है, म्यूचुअल फंड में यूनिट होती है. तो आपके यहाँ जितनी भी यूनिट होगी उस प्राइस के हिसाब से जो भी म्यूचुअल फंड की NAV होगी वो कैलकुलेट करेगा कि 50,000 पे करंट NAV पे कितने क्वांटिटी सेल करने होंगे, और वो आपकी यूनिट सेल कर देंगे. एंड देन दे ट्रांसफर दैट मनी टू योर बैंक एंड द रिमेनिंग मनी कीप्स ग्रोइंग. सो लेट्स से इफ योर फंड ग्रोज एट 8 to 10%, योर कॉर्पस कैन लास्ट लॉन्गर और इवन ग्रो. पैसा निकालने के बाद भी योर कॉर्पस कैन स्टिल ग्रो. ये जो 1 करोड़ आपने लगाया, अगर आप 8 to 10% एम कर रहे हो, आपका कॉर्पस तब भी ग्रो कर सकता है. और वो मैं अभी आपको आगे जाके एग्जांपल्स में दिखाऊंगा कि वो कैसे ग्रो कर सकता है. सो ये फॉर श्योर एक FD में अगर आप करते हैं, डालते हैं पैसा, तो उससे बेटर होता है. ये FD में आपको 6 to 7% रिटर्न मिलती है, और इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो आपको 6 to 7% रिटर्न के आसपास मिलता है. बट इसमें आप हायर रिटर्न के लिए टारगेट कर सकते हो. नाउ let's discuss why SWP beats a fixed deposit. Because returns of fixed deposit will be 6 to 7% and fixed and fully taxable as income, and it is eroded by inflation every year. Let's say अगर 7% inflation है, तो अगर आप return 7% ही कमा रहे हैं तो आपका पैसा तो ग्रो नहीं हो रहा. So for that reason इन्फ्लेशन को अगर आप फैक्टर इन करते हो, तो इस वजह से आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर नॉट द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट. बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू हैव अ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जिसमें आपने एक मिक्स कर दिया है, जिसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी हैं और आपके डेट फंड्स भी हैं, यस आप इतना रिस्क नहीं लोगे बिकॉज यू मस्ट, अगर आप रिटायर कर रहे हो तो यू मस्ट बी फ्रॉम 55 to 65 ईयर्स ओल्ड, तो आपको तब थोड़ा रिस्क कम लेना होता है. तो आपका इक्विटी में एक्सपोजर कम होगा और डेट में आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा. बट तब भी यू कैन एम फॉर 9 to 10% की रिटर्न्स. तो आप इन्फ्लेशन को तो आराम से बीट कर रहे हो. एंड इसमें क्या है, इक्विटी पोर्शन का जो टैक्सेशन है वो ज़्यादा अच्छा होता है than the debt side. Debt is also taxed as per your income tax slab. एंड जैसे फिक्स डिपॉजिट में आपका इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इंटरेस्ट पे आपको पैसे देने होते हैं, टैक्स भरना होता है, वैसे ही आपको डेट फंड्स में करना होता है. बट ओनली द गेन्स पोर्शन ऑफ ईच विड्रॉल इज टैक्स. तो अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा ही पैसे निकाल रहे हो तो आपको खाली जो गेन है उस पर ही टैक्स देना है. एंड कोई पूरा इंटरेस्ट जो जैसे FD में आता है, आपका एंड ऑफ द ईयर, जैसे आपकी जब भी मेच्योरिटी होने वाली होती है और उसके बाद जो इंटरेस्ट आता है उस पूरे इंटरेस्ट पे आपको टैक्स लगता है. इसमें आपका एवरी मंथ
या जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आप सेल कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट आपका टैक्सेशन लगता रहता है। नाउ आई वांट टू शो यू हाउ वी कैन लुक एट डिफरेंट सिनेरियोज, एंड उस डिफरेंट सिनेरियोज में आप देखोगे कि क्या मैजिक हो रहा है, और आप देख पाओगे कि कितना अच्छे तरीके से SWP आपको बहुत सेफली पैसा दे रहा है हर महीना, और आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर रहा है। सो लेट्स गो एंड लुक एट द म्यूचुअल फंड्स। सो लेट्स से SWP का ये कैलकुलेटर हमने खोल लिया है, एंड इस SWP के कैलकुलेटर में फर्स्ट एग्जांपल में हम ले लेंगे एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स से उस कंजर्वेटिव इन्वेस्टर ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किए, ठीक है, उसका इन्वेस्टेड अमाउंट 1 करोड़ है, और उसने सोचा कि मैं 50,000 एवरी मंथ निकालूंगा, जितने मेरे एक्सपेंसेस हैं उस हिसाब से मेरे को 50,000 एवरी मंथ निकालना है। ईयरली इंक्रीज इन SWP वो 10% से ग्रो कर रहे निकाल रहे हैं, बिकॉज हर साल इन्फ्लेशन भी 7-8% बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो इस वजह से उनको जो अपना विड्रॉल प्लान भी है उसमें एवरी ईयर 10% से पैसा ज़्यादा इंक्रीज करके बढ़ा रहे हैं। अब हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव हमने लिया है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम कर लेंगे 8% के हिसाब से, हम उनका एम कर रहे हैं कि उनको रिटर्न्स मिलेगी। अब हम इसके बाद जाएंगे SWP विल स्टार्ट आफ्टर हाउ मच टाइम, लेट्स से SWP स्टार्ट आफ्टर 0 ईयर्स, मतलब आज से ही आपकी SWP स्टार्ट हो गई है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, लेट्स से आपने पूरा ये इन्वेस्ट करके रखा है फॉर 15 ईयर्स, लेट्स से आप 60 पे रिटायर हुए, आपने SWP आपका 1 करोड़ का एक कॉर्पस था वो आपने इन्वेस्ट किया, एंड आपने उसको विड्रॉ करना चालू कर दिया फ्रॉम डे 1। तो हुआ क्या, आपका 15 ईयर्स, लेट्स से 75 तक आप इससे पैसा निकालते रहोगे जब तक आप 75 ईयर्स के हो। तो उस हिसाब से अगर आप देखो, लुक एट द मैजिक, आपने 1 करोड़ 49 लैक्स के आसपास की आपकी फाइनल वैल्यू हुई, 1 करोड़ 49, आपने पैसा निकाला भी हर साल 50,000 रुपए, 50,000 एवरी मंथ यू आर विड्रॉइंग, एंड फॉर 180 मंथ्स यू हैव डन दिस, 15 ईयर्स यू हैव डन दिस, एंड 1 करोड़ 49 लैक्स आपकी, ये जो 1 करोड़ 49 लैक्स ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू है आफ्टर द अमाउंट दैट यू विड्रॉन। तो अगर आपने 90 लैक्स निकाल लिया, 50,000 इंटू 180 इज 90 लैक्स, तब भी आपका जो पैसा है वो बड़ा है, आपका पैसा तब भी ग्रो कर रहा है। लुक एट द अमेजिंग मैजिक दैट आपने हर महीने पैसा निकाला, बट तब भी आपका जो 1 करोड़ है उसमें ग्रोथ आई है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये SWP की, क्योंकि आप यहाँ पे रिटर्न 6-7% नहीं कमा रहे, आप यहाँ पे 8% के आसपास की रिटर्न्स कमा रहे हो। सो दिस इज फॉर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। अब सेकंड हम देखते हैं कि एक अग्रेसिव विड्रॉल प्लान जिसका है उसका देखते हैं, जो अग्रेसिव है कि ज्यादा पैसा निकालना है। 1 करोड़ लगाए, बट उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपीज एवरी मंथ निकाले, 10% से एवरी ईयर इंक्रीज हुआ, उनकी रिटर्न्स 8% ही है। SWP स्टार्ट्स टुडे, एंड ये हम चेक कर रहे हैं फॉर 15 ईयर्स। तो अगर आप देखो उनकी एंडिंग वैल्यू क्या है, 0। तो उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा निकाल लिया है, उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा निकाल लिया है, एंड उन्होंने जो टोटल अमाउंट है वो निकाला है 1 करोड़ 60 लैक्स, 1 करोड़ 60 लैक्स। एंड अगर आप देखो 160 इज लास्ट टाइम अगर हम देखते हैं तो वो 180 था, अगर आप देखो 180 डिवाइड बाय 12 तब 15 ईयर्स होता है, बट अभी उसकी जो चली वो खाली 160 मंथ्स चली, तो 13 ईयर्स में उन्होंने अपना सारा पैसा खत्म कर दिया है, क्योंकि वो अग्रेसिवली निकाल रहे थे। तो ये जो स्वीट स्पॉट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मंथली कितना विड्रॉ कर रहे हो, कितना तेजी से विड्रॉ कर रहे हो, और वहीं पे हम जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं इसमें, कि हम आपको हेल्प करते हैं कि आप कैसे कितना विड्रॉ करना चाहिए जिससे आप अपने पैसे पे रन आउट नहीं हो। तो अगर आप देखो दोनों में सब कुछ सेम रखा, बस हमने ये चेंज कर दिया कि मंथली विड्रॉल 1 लाख इसमें, और उसमें कंजर्वेटिव विड्रॉल जो चल रहा था उसमें खाली हम 50,000 निकाल रहे थे। यहाँ पे वो पूरा आपका पैसा कभी खत्म नहीं हुआ 15 साल, और यहाँ पे आपका पैसा 13 ईयर्स में ही खत्म हो गया सारा का सारा। So that is very important to keep the balance. Now let's look at the rules. This is very important when you do your SWP. कुछ rules होते हैं जो आपको देखने होते हैं। तो आपका जो विड्रॉ आप करते हो वो आप अपने इनिशियल कैपिटल, जैसे उसमें 1 करोड़ था तो 1 करोड़ का आप 4 to 5% ही साल का निकालो। तो 4 to 5% आपका, लेट से आप 5% निकाल रहे हो तो साल का कितना हो गया 1 करोड़ पे 5%, दैट इज 5 लैक्स। एंड अगर आप 5 लैक्स को 12 से डिवाइड करोगे तो वो आपका मंथली आ जाएगा। और अगर हम इधर देखें 5 लैक्स डिवाइडेड बाय 12, 41,600 ही आप निकालो। तो अगर आप 41,600 ही निकाल रहे हो देन इट इज बेनिफिशियल दैट आप SWP में आपका पैसा खत्म नहीं होगा। SWP करने के लिए आप डेट फंड्स ही यूज करो,
डोंट यूज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बिकॉज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, ऊपर नीचे वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। डेट फंड्स आर मोर स्टेबल, तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेट फंड्स ही यूज करने चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, स्किप योर SWP इन ईयर 1। जैसे हमने इनिशियली यहीं पे स्टार्ट कर दिया था, अगर हम यहाँ पे 1 ईयर बाद स्टार्ट करें तो अगर आप देखो तब आपके लिए बेटर है। अगर आप 50,000 वाले उसको देखते तो यहाँ पे 1 ईयर बाद स्टार्ट करने में आपको जीरो पे अगर स्टार्ट कर रहे हो, एंडिंग वैल्यू 1,50,00,000, एंडिंग वैल्यू 1,67,00,000। एक साल बाद इस वजह से करना चाहिए क्योंकि अगर आप डे 1 से ही स्टार्ट कर दो पैसा निकालना, तो इशू ये होता है उसमें कि आपके पैसा ग्रो नहीं होता और उससे पहले ही विड्रॉल चालू हो जाता है, तो आपकी यूनिट्स में कोई ग्रोथ नहीं होती और आपकी यूनिट्स ज़्यादा जल्दी सेल होने लग जाती हैं। तो इस वजह से स्किप ईयर 1। और आई वुड से बिकॉज आपका पैसा ग्रो तेजी से होना चाहिए, तो आपको FD की रिटर्न्स को बीट करना है, इन्फ्लेशन की रिटर्न्स को बीट करना है, तो आपका जो एक्सपोजर टू इक्विटी है वो एटलीस्ट 20 to 30% तो होना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो लगा के पैसा बस भूल जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। आपको रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए कि मेरा पैसा अभी क्या चल रहा है, मैंने जो मेरा विड्रॉल हो रहा है उसके बाद करंट स्टेटस क्या है, तो एनुअल रिव्यू तो आपको करना ही चाहिए। एंड फॉलोइंग दीज 5 rules consistently is the difference between a corpus that lasts 10-15 years after retirement and one that lasts 30 years. The most critical, never withdraw more than 4 to 5% of your corpus annually and always review as markets and needs evolve. तो ये हो गए हमारे golden rule. Now discussing about the mistakes that people usually make. Ignoring taxation, not understanding how SWP gains are taxed leads to unexpected tax bills. Only the profit component of each unit sold is taxable, so plan accordingly. अब मैं अगर आपको दिखाऊं डेट फंड की क्या टैक्सेशन होती है, जो अगर आपका डेट वाला पार्ट सेल हो रहा है तो डेट फंड की क्या होती है टैक्सेशन। डेट म्यूचुअल फंड्स आर टैक्स्ड एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट, तो जो भी गेन होगा उसमें आपका परसेंटेज टर्म्स में आपका जो भी स्लैब में आप आ रहे हो उसके हिसाब से आपको टैक्स लग जाएगा। तो इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता, बस आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आप पे टैक्स लग जाता है। अब अगर आप इक्विटी साइड वाले सेल कर रहे हो तो इक्विटी में क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है 12 मंथ से ऊपर अगर आपने इन्वेस्टमेंट को रखा हुआ है, देन इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है अगर 12 मंथ्स और लेस रखा हुआ है। टैक्स रेट फॉर लॉन्ग टर्म इज 12.5% ऑन गेन्स एक्सीडिंग 1.25 लाख। तो लॉन्ग टर्म में आपका अगर 1.25 लाख से कम का गेन है तो आपको टैक्स नहीं भरना होता, वो एग्जेम्प्टेड है। बस 1.25 लाख के ऊपर के गेन्स पे आपको टैक्स भरना होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स सेल कर रहे हो देन दैट मीन्स 20% आप पे टैक्स लगेगा। पहले 15 था, अब ये 20 हो गया है। तो अकॉर्डिंगली प्लान करना है आपको कि आपको डेट है या इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसको सेल कर रहे हो तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रॉन्ग फंड ले लिया है देन दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू। Using high volatility equity funds for SWP is not recommended. Debt funds या balance advantage funds या conservative hybrid funds are far more suitable because वो एक stability देते हैं portfolio में। And withdrawing too much, like जैसे मैंने आपको बोला 4 से 5% तक एम करो, कुछ लोग होते हैं 7, 8, 9% विड्रॉ कर लेते हैं, तो आपका कॉर्पस खत्म होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड एनुअली रिव्यू करिए एंड डे 1 से विड्रॉ नहीं करना है। सो दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड, और अगर आप मिस्टेक अवॉइड करोगे आपका पैसा खत्म नहीं होगा। नाउ मैं एक आपको फाइनल कैलकुलेटर दिखाना चाहता हूँ कि आपको एक पता चले कि बेस्ट तरीका क्या है करने का, एंड आपको एक माइंड उस तरीके से सोचने में हेल्प करेगा कि हमें किस तरीके से करना चाहिए और इसमें क्या क्या तरीके हैं जिससे आप ट्रिक्स हैं जिससे आप नहीं कर जो आप फॉलो करोगे तो आपका पैसा खत्म नहीं होगा। सो लेट्स से अब हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख लिया अपना 1 करोड़। अभी हमने लास्ट टाइम जो देखा था 5% के हिसाब से हमारा 41,666 आ रहा था नंबर। अब ईयरली इंक्रीज इन SWP अमाउंट हम इन्फ्लेशन ले लेंगे जो 6-7% होती है, बट हम इसमें ले लेंगे कि हमें ग्रो करना है ईयरली बाय 8%। ठीक है, ईयरली हमें 8% से ग्रो करना है और हम बैलेंस एडवांटेज फंड्स में डालेंगे इसको ज़्यादा और एम करेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो जाएंगे अराउंड 10% के आसपास हम एम करेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो 9 to 10% दे। SWP हम 1 ईयर बाद चालू करेंगे एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन हमारा लेट से हमने 15% लिया। अब जो मेरा 1 करोड़ है उसकी वैल्यू एंड में क्या बची, 1,94 lakhs। टोटल अमाउंट विड्रॉन 1,21 lakhs मैंने निकाल लिया है। एंड अगर देखूँ 15 ईयर्स के लिए मैंने निकाला है, सो 15 ईयर्स अगर मैं करूँ 15 into 12 कितना होता है 180। सो मैंने 168 मंथ्स तक निकाला है बिकॉज एक साल बाद चालू किया। 180 मंथ्स का पूरा टाइम फ्रेम था इन्वेस्टमेंट का। तो अगर आप देखो ये 1 करोड़ पे टोटल रिटर्न्स अगर इन दोनों को आप ऐड कर लो तो दिस इज समवेयर अराउंड 3 crores 15-16 lakhs।
So 3 करोड़ आपका पैसा आपने निकाल भी लिया, आपकी लाइफ भी चलती रही, आपने आराम से विड्रॉ किया और तब भी आपने अपना पैसा को ग्रो किया। दैट इज द पावर ऑफ SWP गाइस। ये बहुत ही पावरफुल है। अब एक इशू जो लोग क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को मेरे एक्सपेंसेस तो लेट से मंथली 80,000 है, या लेट से वो बोलेंगे मेरे मंथली एक्सपेंसेस हैं कितने 1 लाख। तो 1 लाख अगर आपके हैं तो आपके साल में हो गए 12 लैक्स। तो अगर आप 12 लैक्स के हिसाब से देखो, 12 लैक्स आपने इन्वेस्ट किए, 12 लैक्स आपको ईयरली चाहिए एंड आप 5% ही विड्रॉ कर रहे हो अपने टोटल अमाउंट पे। टोटल अमाउंट पे आप 5% विड्रॉ कर रहे हो, तो आपको करीब आपका जो कॉर्पस होना चाहिए, फिर अगर आपको ज़्यादा विड्रॉ करना है तो आपका कॉर्पस कितना होना चाहिए, 2 करोड़ 40 लैक्स का। अगर आपको हर महीने 1 लाख रुपीज़ निकालने हैं और आप तब भी आपका पैसा बहुत अच्छा ग्रो हो चुका होगा, क्लोज टू डबल आपका पैसा हो चुका होगा एंडिंग वैल्यू, और आपने पैसा विड्रॉ भी कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग विड्रॉल अमाउंट ज़्यादा कर लेते हैं, वही एग्जांपल हो गया जो हमने अग्रेसिव विड्रॉल प्लान जो हमने देखा था सिनेरियो। तो आपको अगर ज़्यादा निकालना है तो आपको पैसा ज़्यादा डालना पड़ेगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है रिमेंबर करना। Look, I get this. It might be overwhelming for you. You've spent 30-40 years building wealth and आपको डर लग रहा होगा कि हमारा पैसा ख़त्म तो नहीं हो जाएगा. But here's the truth. One wrong withdrawal rate, wrong tax planning can cost you, that's for sure. And that is years your financial planning, security that you've put in, that will be at risk. And I've helped a lot of people plan their SWPs and I have tailored according to their needs. So if you also need help, just comment below. I'll be happy to help you. Or either you can go on Instagram and just DM me there and I will help you. I'll review your corpus. What are your expenses right now and what will be your expenses after retirement? We'll look at the tax situation and design a proper SWP plan for you. So it's not a generic advice, just your plan according to your needs. So if you want help, just comment below. And if you like this video, do hit the like button and also subscribe to the channel if you like content like this. I will see you in the upcoming videos.